Hello friends, in last session we have discussed about the distinct keyword for elimination of duplicate values. As you remember, then we have discussed about this topic. Now today's session, in that we will start the next topic that is related with the sorting data, sorting data in a table. For that, you have to learn order by clause. Order by clause we will discuss. Order by clause. You have to learn order by clause used with select statement. Okay. Now see, शॉर्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी हमको डेटा शॉर्टेड फॉर्म में चाहिए, इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग, बराबर है। जैसे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या नंबर के फॉर्मेट में ए टू जेड या जेड टू एट, जेड टू ए, या न्यूमेरिक फॉर्मेट में जैसे कि 1, 2, 3, 4, like ascending or descending in reverse order, like 10, 9, and all these things that you, I think, aware very well. Two types of sortings are there. Two types of sortings. That is the ascending, and the second is the descending. Okay, descending orders. So let us discuss with first the ascending order. For that, the syntax is there. See, this sorting will be temporary, not permanently. For that, you write select statement. Select presently suppose the for all columns an asterisk from table name, and then you write what order by column name, बराबर है, and optional is short order. Okay, by default पहले तो ये मैं लिख देता हूँ, short order is optional. जब भी स्क्वायर ब्रैकेट में कोई होता है तो वो ऑप्शनल होता है. दूसरी बात, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर विल बी इन ascending order. Ascending. Okay. So for that you write what order by and column name. पहले हम एक कॉलम पे सीखेंगे. So first I will create the table as already it is not available then you write the column name. So emp number, name, varchar2, and salary. I will insert the values. 5 records I will insert. For that I will use the ampersand. Character is there, so I will write name and then salary. 1 Ramesh 5,000, 2 Ganesh 10,000, 3 Rajesh 15,000, 4 Amit 20,000, and 5 that is the Prakash. Pretty well. 3 lakh I have entered, no problem. Let's start from प्रकाश. ज्यादा मिल गया उसको सैलरी 3 लाख, कोई बात नहीं, जाने दो. ओके, ऐसा चलता है, हमको कहाँ देना है अभी. तो you can be able to see these are the records are there. Now I want to see the order of the records based upon their salary. Okay, so I will write what. पहला क्वेरी क्या होगा. क्वेरी ये है आपकी कि डिस्प्ले क्वेरी है
डिस्प्ले एम्प्लॉई डिटेल्स बेस्ड ऑन देयर सैलरी, बराबर है। अच्छा, जब भी आपको बोला जाए ना कि डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल्स बेस्ड ऑन देयर सैलरी, सैलरी मानी क्या होगा, हाईएस्ट टू लोएस्ट, इसका मतलब क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। So I will write what, select all details बोला है ना, from employee order by salary, and you have to write DSC for descending. So you can see 3 lakh, 20,000, 15,000, 10,000 and 5,000 is there. Okay. Remember, DSC is used for descending order. Okay. By default, always it will be in ascending order. Okay. तो उसके लिए not required to write anything for ascending, लेकिन आपको डिसेंडिंग के लिए क्या लिखना है, DESC, that we have written. Okay. अगर मैं इस तरीके से लिखता है, select star from employee order by salary, so you can see 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 and 3 lakh ascending में आएगा. ओके, मीन्स छोटे से बड़े तक जाएगा, और आपको रिवर्स में देखना है तो बड़े से छोटे। और हमारी क्वेरी क्या है, बेस्ड ऑन देयर सैलरी। बेस्ड ऑन देयर सैलरी का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट टू लोएस्ट, ये याद रखना है आपको, ठीक है, इसलिए उसको ध्यान में रखना है आपको। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब मान लीजिए कि मुझे नाम और सैलरी के हिसाब से सॉर्टिंग करना है, ठीक है, ये आपका टेबल है और मुझे नाम और सैलरी के हिसाब से करना है। सो आई विल राइट व्हाट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई ऑर्डर बाय नेम कॉमा सैलरी। सो व्हाट विल यू सी, पहले नाम के ऊपर होगा, नाम के ऊपर में क्या आएगा, देखो, अमित, गणेश, प्रकाश, राजेश एंड रमेश। लेकिन उसकी सैलरी फिर शॉर्टेड में क्या होगा, शॉर्टिंग नहीं होगा, बराबर है, क्योंकि नाम और सैलरी दोनों कॉलम को हम ले रहे हैं, तो पहले किस पे वो शॉर्टिंग करेगा, नाम के आधार पे। तो नाम के आधार पे वो करेगा जब, तब आप देख सकते हो कि नाम के आधार पे तो हो गया अमित, गणेश, प्रकाश, राजेश एंड रमेश। लेकिन फिर सामने अगर सैलरी को भी शॉर्ट करने जाएगा तो एक की सैलरी दूसरे में आ जाएगी। अमित का 20,000 है और रमेश का 5,000 है, तो अगर मान लीजिए अमित, गणेश, प्रकाश, राजेश, रमेश हो गया, लेकिन अगर सैलरी के हिसाब से करने जाएगा तो अमित की सैलरी 5,000 हो जाएगी, हालांकि वो कितनी है, 20,000। इसलिए उसमें ये पॉसिबल होगा नहीं। वैसे ही आप उल्टा करोगे, मान लीजिए कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई ऑर्डर बाय सैलरी कॉमा नेम, तो वो सैलरी के हिसाब से करेगा, देखो सैलरी के हिसाब से, तो उसमें नाम नहीं आएगा क्योंकि नाम आपकी दूसरी कॉलम है। अगर आपका रिकॉर्ड इस तरीके से है, मान लीजिए कि रमेश को 5,000 है ना और अमित को 20,000 है, बराबर है, तो अमित है, तो हम एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई वैल्यूज फॉर अमित and let us see, we will take what, that the 10,000. Now select star from employee. Now you will write select star from employee order by, and then we will write what, name and then salary. So you can see, बराबर है, अमित 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 हो गया 4 4, फिर नाम के आधार पे ना, तो नाम नाम हो गया अमित अमित। अब उसमें सैलरी किसकी कम है, 10,000, तो 10,000 वाला पहला दिखाएगा और 20,000 वाला बाद में। तो जब आपको एक से ज्यादा कॉलम अगर ऑर्डर बाई में लिखनी है तो आपको क्या लिखना है, ऐसी ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जिसमें वो शॉर्टिंग कर पाए, वरना पहली कॉलम पे करेगा दूसरी पे नहीं हो पाएगा, जब उसकी वैल्यूज डिफरेंट होगी तो। और जैसा मैंने बोला कि आपको डिसेंडिंग में करना है तो आपको क्या लिखना है, और मान लीजिए सिर्फ आपको नाम ही देखने हैं,
नाम और सैलरी, तो यू कैन राइट लाइक दिस वन ऑल्सो, फ्रॉम एम्प्लॉई order by, you can be able to write name and then salary, so you will see only the name and salary. ओके, तो ये आपका हो गया ऑर्डर बाय क्लोज, बराबर है। अब मैं आपको आगे समझाने जा रहा हूँ क्या आज के नेक्स्ट सेशन में, और क्या आगे आएगा आपके सामने कि क्रिएटिंग टेबल बेस्ड अपॉन अनदर टेबल। ओके, तो वापिस कौन सा कमांड आएगा, नेक्स्ट क्रिएटिंग टेबल बेस्ड ऑन अदर टेबल, बराबर है। हम एक टेबल के आधार पे दूसरे टेबल बना रहे हैं। व्हेन यू क्रिएट टेबल बेस्ड ऑन अदर टेबल, then structure as well as data will be copied. ओके, स्ट्रक्चर एज वेल एज डेटा, याद रख लेना, स्ट्रक्चर एज वेल एज डेटा, क्योंकि व्हाई, बिकॉज क्रिएट टेबल कमांड इज DDL कमांड। ओके, वो स्ट्रक्चर पे काम करता है, तो उसके लिए सिंटेक्स क्या आएगा, पहले सिंटेक्स हम समझ लेते हैं। ओके, सिंटेक्स क्रिएट टेबल, टेबल नेम, बराबर है। देन यू, इट इज ऑप्शनल, कॉलम नेम, इसके बारे में भी समझाऊंगा। कॉलम नेम इट इज ऑप्शनल, जब भी राउंड स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी आता है तो ऑप्शनल। फिर आपको लिखना है एज कीवर्ड, एज सिलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम नेम, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ओके, ठीक से देख लेना, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, कॉलम नेम, कॉलम नेम, सिलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम नेम, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, बराबर है। ये टेबल क्या है आपका, न्यू टेबल, और ये टेबल जो ऑलरेडी बना हुआ है। तो लेट अस देखिए, आपके पास ऑलरेडी एम्प्लॉय टेबल बना हुआ है। अब आप इसके आधार पे नया टेबल बनाना चाहते हो तो क्रिएट टेबल EMP1, बराबर है, या EMP न्यू, एज सारी कॉलम लेनी है तो एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, table created. Now see, select star from employee and select star from EMP underscore new. दोनों सेम हो गया, दोनों टेबल क्रिएट हो गए। कमिट बार बार लिखना, ठीक है, कमिट। आप देख सकते हो कि दोनों के अंदर सेम स्ट्रक्चर, सेम डेटा, बराबर है। ये हो गया। अब आपको इस तरीके से लिखना है, मान लीजिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। Now I want to use only the number and name only, so I will write what, create table EMP1, okay, as select EMP number comma name from employee। मैं नया टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ EMP1, जिसमें सिर्फ कौन सी कॉलम को ध्यान में ले रहा हूँ, एम्प्लॉय नंबर और नेम कॉलम को, सैलरी को नहीं ले रहा हूँ। So you can see table is created. You have to write what, select star from EMP1, बराबर है। कौन कौन सी सिर्फ कॉलम आई, दो ही आई, नंबर एंड नाम, और कुछ आया नहीं। ओके, you can write like this also, suppose like this one, that your employee table is like this one, और आपको एम्प्लॉय नंबर और नाम है ना, लेकिन आपको नई टेबल के अंदर कॉलम का नाम देखना है, सिर्फ नंबर और नाम, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्रिएट टेबल EMP2, कॉलम का नई नाम क्या रखना है, नंबर एंड नेम, EMP नेम ऐसा रखना है, मान लीजिए एज सिलेक्ट EMP अंडरस्कोर नंबर कोमा नेम फ्रॉम एम्प्लॉई, बराबर है। जैसे ही मैं एंटर लगाऊंगा, टेबल क्रिएटेड। नाउ सी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई 2,
देखो मेरे कॉलम के नाम बदल गए, ठीक है। ठीक है, कमांड कौन सा है, इस तरीके से आपको कॉलम का नाम बदल देना है, ठीक है। और दो कॉलम है तो दो ही कॉलम सिलेक्ट करने का, तीन नहीं करने का, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर का डेटा किस में जाएगा, नंबर में, और नाम का डेटा किस में जाएगा, एम्प्लॉय नेम में, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा कमांड, क्रिएट टेबल बेस्ड अपॉन अनदर टेबल। अच्छा मान लीजिए कि आपको ऐसा करना है, आपकी जरूरत ऐसे भी हो सकती है, एक और सिंटेक्स समझ लेना कि अगर आपको इसमें सिलेक्ट में आपको वेयर क्लोज डालना है तो वेयर क्लोज भी डाल सकते हो, ऑर्डर बाय भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आप कर सकते हो इस तरीके से, ओके। तो मान लीजिए कि मैंने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, और मैं नया टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। मेरी क्वेरी क्या है, क्वेरी ऐसी है, क्वेरी क्रिएट टेबल, create table emp based on employee which contains, create table emp which contains, ऐसा देखो, create table emp based on employee table and only contains those records whose salary greater than 10,000. Create table EMP based on employee table and only contains those records whose salary greater than 10,000. So I will create table EMP as select star from employee, क्योंकि सारी कॉलम मुझे चाहिए, where salary greater than 10,000. Select star from EMP. You can see तीन ही रिकॉर्ड आए, राजेश 15,000, अमित 20,000 और प्रकाश 30,000, क्योंकि मैंने लगाया है एक कंडीशन, वेयर क्लोज में क्या आती है कंडीशन, सैलरी ग्रेटर देन 10,000, तो तीन ही रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन बी एबल टू राइट, यू कैन ऑल्सो क्रिएट ऑन द बेस्ड ऑफ ऑर्डर बाय ऑल्सो, लाइक दैट सपोज select star from employee, you will create a new table, create table emp short, create table emp short as select star from employee, order by salary descending order, ठीक है। Table created, select star from emp underscore SOL. Oh yes, because my table name is what, short, emp underscore short, like this one, okay। तो देखिए आप, ये मेरा पुराना टेबल, देखो सारे रिकॉर्ड आ गए जिसमें सैलरी का डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर हो गया, ओके। बार बार कमिट आपको लिखना है। तो ओके स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू कंक्लूड विद दिस क्रिएट टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट कमांड बेस्ड अपॉन द अनदर कमांड, अनदर टेबल। सो वेरी इजी। इससे क्या फायदा होगा कि आपको रिकॉर्ड वापस इंसर्ट, मान लीजिए कोई टेबल के अंदर 100 रिकॉर्ड है और हूबहू दूसरा कॉपी आपको बनाना है, तो यू कैन बी एबल टू यूज द क्रिएट टेबल कमांड, create table based upon another table command that will copy all records with the structure। तो आपको बार बार रिकॉर्ड इंसर्ट करने पड़ेंगे नहीं, और नया टेबल का नाम भी आ जाएगा, क्योंकि टेबल का नाम तो डुप्लीकेट अलाउ नहीं, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।